Hello everyone, welcome back to RC series. In this third lecture on reading comprehension, we'll discuss title of a passage. Now title of a passage is one question that is commonly seen on law entrance tests. आपको Clat, AILET and दूसरे जो law entrance tests हैं MHCET में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं या फिर स्लैट में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं वहाँ पे टाइटल ऑफ पैसेज के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं. You know, title of passage becomes all the more important because अगर आप टाइटल ऑफ पैसेज समझेंगे तो कहीं ना कहीं पे जो मेन आइडिया है या फिर ऑथर क्या कहना चाहता है, टोन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझने में हेल्प मिलेगी. सो जैसे मैंने आपको बताया, it's a common question type that student generally witnesses on different law entrance tests. जब आप टाइटल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइटल ऑफ पैसेज आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको रोल किसका, एक ऑथर का रोल अज्यूम करना पड़ता है. यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ एन ऑथर कि आप उस पैसेज के ऑथर हैं एंड आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिख रहे हैं. सो व्हेन यू गो फॉर टाइटल ऑफ पैसेज यू हैव टू सी ऑथर ने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखी हुई है आपके लिए एंड मोर ओवर ऑथर कहना क्या चाहता है. You have to pick up on keywords and specific writing styles. Not just that, आपको ऑथर का way of presenting his ideas वो भी पहचानना पड़ेगा. क्या ऑथर frustrated है और annoyed है और is he perplexed or he supports a particular assertion. So title will depend on all these factors. So मैंने आगे आपके लिए कुछ passages यहाँ पे रखे हुए हैं and we'll consider all these things while we try to find out the title of those passages. However, you should always try to look for these 5 things. Now, when you consider or when you try to find out title of a passage, आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है. जो ऑप्शंस में आपको दे रखा है उसमें से बेस्ट टाइटल कौन सा हो सकता है वो देखना है. नेक्स्ट, ऑथर का टोन जानना. मैंने पीछे अभी कुछ वर्ड्स आपके लिए रखे थे, वेदर ऑथर इज फ्रस्ट्रेटेड और अनॉयड और परप्लेक्स्ड और ही इज सपोर्टिव ऑफ सम आर्ग्यूमेंट. ये सारी चीज़ें भी मैटर करेंगी. टाइटल जो है, इट शुड नाइदर बी टू नैरो इन स्कोप और नॉर इट शुड बी टू ब्रॉड. सो जब आप टाइटल की बात करते हैं तो जितना वहाँ पे आपको स्कोप दे रखा है, स्कोप के अकॉर्डिंग टाइटल जो है वो डिसाइड होगा. डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे जो स्कोप में शायद बहुत ज़्यादा नैरो है या फिर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है या फिर एक्सट्रीम वर्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल, नेवर, नो. सो यू विल हैव टू जज एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैसेज. कुछ थीम पे हमें ध्यान देना पड़ता है बिकॉज टाइटल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से निकल के नहीं आता. Title is actually about the theme that runs through the passage. So we have to look at all the paragraphs and the organization कि किस तरीके से एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ है, कैसे आइडिया फ्लो हो रहा है. So all these factors will play a very important role while you try to identify the title of a passage. Let's take an argument and try and see कैसे हम इसका टाइटल फाइंड आउट कर सकते हैं. So here is an argument for you followed by a question. अब ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट आप एक बार रीड करें एंड उसके बाद फिर हम इसका क्वेश्चन देखते हैं. Now what this argument says is the Woodstock Music and Art Fair, better known to its participants and to history simply as Woodstock, should have been a colossal failure. Just as a month prior to its August 15, 1969 opening, the fair's organizers were informed by the Council of Wallkill, New York, that the permission to hold the festival was withdrawn. Amazingly, not only was a new site found, but the word spread to the public of Fair's new location. At the new site, fences that were supposed to facilitate ticket collection never materialized, and all attempts at gathering tickets were abandoned. Crowd estimates of 30,000 kept rising, and by the end of 3 days, some estimated the crowd at 5 lakh. Then on opening night, it began to rain off and on. Throughout all 3 days, huge summer storms rolled over the gathering. In spite of these problems, most people think of Woodstock not only as the fond memory, but as the defining moment for an entire generation. So how did this argument begin? यहाँ पे ये कहा गया है कि जो फेस्टिवल था
कुछ ही दिन पहले जो परमिशन थी वो विड्रॉ कर दी गई थी, एंड दूसरी जगह पे फिर हमने आइडेंटिफाई किया एक नया लोकेशन। जो फेंसेस लगनी चाहिए थी फॉर टिकट गैदरिंग्स वो हुई नहीं, मटीरियलाइज ही नहीं हुई, एंड जो 30,000 का क्राउड एस्टिमेट किया गया था वो 3 दिन के एंड पे कुछ 5 लाख का एस्टिमेट किया गया। देन ऑन द ओपनिंग नाइट इट बिगैन टू रेन off and on throughout all 3 days. Huge summer storms rolled over the gathering. In spite of these problems, most people think of Woodstock. Now, यहाँ पे definitely आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स बता रखी है जो उस म्यूजिक फेस्टिवल के साथ या फिर जो आर्ट फेयर था उसके साथ हुई। हाउएवर, ऑथर का जो ऑब्जेक्टिव है ये आर्ग्यूमेंट देने का वो ये नहीं है कि वो आपको इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स बताएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। सो अगर इन ऑप्शंस में, ऑल्दो आपके पास यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, बट देन प्रॉब्लम्स विद वुडस्टॉक आर्ट एंड म्यूजिक फेस्टिवल या फेयर के ऐसा कोई अगर टाइटल होता तो डेफिनेटली वो आपका टाइटल नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट फ्यू लाइन्स में जो ऑथर कह रहा है दैट चेंजेस द एंटायर that changes the entire theme that is running through the paragraph. So, main idea backstage at Woodstock. Obviously, we're not talking about what happened backstage at Woodstock. Woodstock from band to who. This is not even the title of this passage. Remembering Woodstock. Obviously, क्योंकि आपको बता रखा है कि कुछ ही दिन पहले उसका परमिशन विड्रॉ कर लिया गया था, फिर नई लोकेशन पे शिफ्ट हुआ, एंड जो 30,000 का क्राउड था वो 5 लाख तक पहुंच गया, एंड स्टॉर्म्स चलते रहे, लेकिन most people still think of it as a fond memory. So remembering Woodstock is our answer here. Woodstock, the untold story, could have been a logical answer, but then Woodstock, the untold story may, there should have been a lot of other things as well. So यहाँ पे जो 2 close answer options हैं वो है option C and option D. However, the correct answer is option C, not option D, because untold story में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आती। However, अगर हम लोग passage का scope देखें, it is limited to organizing to a new, organizing this music and art fair to a different place, and how people still remember it. Untold story होता तो आपके पास क्या क्या वुडस्टॉक ने इसके ऑर्गेनाइजर्स ने क्या क्या किया, कौन कौन से लोग आए, कैसे उनके साथ डीलिंग की गई, ये सारी चीज़ें भी दे रखी होती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हेंस द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ में आया। इसी के साथ हम लोग ऐसा एक और आर्ग्यूमेंट देखेंगे। विल ट्राई टू आइडेंटिफाई टाइटल फॉर दैट आर्ग्यूमेंट एज वेल, एंड साथ ही साथ जो हमने पहले 2 सेशंस में मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग आइडियाज को सेग्रीगेट करना सीखा था, हम वो वाली स्किल भी यूज करेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट। नाउ आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर अ मोमेंट, रीड दिस आर्ग्यूमेंट, एंड उसके बाद फिर मैं इसका क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। आई होप आपने ये आर्ग्यूमेंट जो है वो पढ़ लिया है। एंड व्हाट दिस आर्ग्यूमेंट सेज इज, since racism is a philosophy of the establishment and is propagated in the institutions of higher learning by the mass media which they control through ownership, it is not surprising to observe that a vast majority of white population are firmly of the belief that Negroes are subhuman or only semi-human. Racism क्योंकि establishment का एक part है and institutions of higher learning से propagate किया जा रहा है। ये सरप्राइजिंग नहीं है देखना कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वाइट पॉपुलेशन आर ऑफ द बिलीव दैट नीग्रोज आर सब ह्यूमन और ओनली सेमी ह्यूमन, जबकि बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के जो असर्शंस हैं वो इसके बिल्कुल अलग है। द ब्लैक पेरेंट नोज हिज चाइल्ड इज एजुकेबल इन स्पाइट ऑफ ऑल द फंडेड प्रोग्राम्स एंड स्टडीज टू द कॉन्ट्ररी। जो ब्लैक पेरेंट है वो जानता है कि उसका चाइल्ड को एजुकेट किया जा सकता है, जबकि प्रोग्राम्स और स्टडीज जो हैं वो कॉन्ट्ररी state करते हैं. Dishonesty and distortion in intelligence tests are common. Literature on such tests shows that when two groups of whites differ in their IQs, explanation is immediately sought in schooling. And environment, economic position of the parents. However,
when blacks and whites differ in precisely the same way, the difference is usually sought in the difference is said to be generic. अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो तो एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रखी है. ऑब्जर्वेशन क्या दे रखी है कि जो मेजॉरिटी वाइट पॉपुलेशन है दे आर ऑफ द बिलीफ दैट नीग्रोज आर सब ह्यूमन और ओनली सेमी ह्यूमन, जबकि ऐसा नहीं है. क्यों? इसके लिए ऑथर ने ये स्टेट कर रखा है. सो ये एक ऑथर जो है वो इस पर्टिकुलर व्यू को रिजेक्ट कर रहा है. जो वाइट पॉपुलेशन है वो उसका जो बिलीफ है कि नीग्रोज आर सब ह्यूमन और ओनली सेमी ह्यूमन, इसको रिजेक्ट करने के लिए ऑथर एक आपको प्रिमाइस दे रहा है कि जो बायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, दे स्टेट द कॉन्ट्ररी. फिर ऑथर आपको एक दूसरा इंस्टेंस दे रहा है कि ब्लैक पेरेंट जानता है कि उसके चाइल्ड को एजुकेट किया जा सकता है, लेकिन जो प्रोग्राम्स हैं, फंडेड प्रोग्राम्स हैं, स्टडीज़ हैं, दे स्टेट टू द कॉन्ट्ररी. वो बोलती हैं कि नहीं, ब्लैक पेरेंट के चाइल्ड को एजुकेट नहीं किया जा सकता. क्यों? बिकॉज देयर इज डिसऑनेस्टी एंड डिस्टॉर्शन इन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड दे आर वेरी कॉमन. लिटरेचर ऑन सच टेस्ट शोज दैट, अगेन दिस इज अ प्रीमाइस, ऑथर की व्यू को सपोर्ट कर रही है क्योंकि ऑथर इस व्यू को रिजेक्ट कर रहा है कि ब्लैक्स जो हैं उनको एजुकेट नहीं किया जा सकता, या फिर नीग्रोज जो हैं वो सब ह्यूमन है या फिर सेमी ह्यूमन है. इसको रिजेक्ट कर रहा है. इसी के लिए ऑथर एक और एग्जाम्पल दे रहा है. ऑथर का टोन देखिएगा, वहाँ पे वो कह रहा है कि जब दो वाइट व्हेन टू ग्रुप्स ऑफ वाइट्स डिफर इन देयर IQs, जब वाइट्स के दो ग्रुप अपने IQs में डिफर करते हैं तो हम लोग उसका डिफरेंस जो है स्कूलिंग में, एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ पेरेंट्स में ढूंढते हैं, उसका रीज़न कि ऐसा क्यों है. लेकिन जब ब्लैक और वाइट में ये डिफरेंस आता है तो हम लोग इसका रीज़न कहाँ ढूंढते हैं और क्या बोलते हैं कि ये तो जेनेटिक है. सो हाउ डू यू थिंक ऑथर इज प्रेजेंटिंग दिस आर्ग्यूमेंट? इज ऑथर वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस फैक्ट? नहीं. इनफैक्ट यहाँ पे ऑथर का जो काउंटर है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है. ऑथर इस पर्टिकुलर असर्शन को डिनाई कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग दिस एग्जांपल. सो you'll have to pay attention to this information while you try to identify the title of this passage. There are other instances, author और भी instances दे रहा है. There are other instances which show the prevalence of racism. Trade schools have a long history of excluding blacks. ट्रेड स्कूल्स में ब्लैक्स को जगह नहीं दी जाती, एंड देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री टू प्रूव दैट. हाउएवर, अ ब्लैक ओकेजनली स्लिप्स थ्रू द नेट. अगर एक ब्लैक जो है उसको गलती से भी एडमिशन मिल जाता है, आफ्टर विच द नेट इज थॉरली एग्जामिन्ड टू सी हाउ इट हैपेंड. सो ऑथर का वापस यहाँ पे अगर आप मूड देखें, सो ही इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस सिचुएशन. सो इस तरीके से इस आर्ग्यूमेंट को मैंने ब्रेक किया. सो ऑथर एक पर्टिकुलर व्यू को रिजेक्ट कर रहा है, रेसिज्म के बारे में अपने ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा है. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग would be the most logical title to the passage? You have 4 options. Option A says how racism affects American economy, evolution of racism in America, racism and establishment, the story, we are all racists. So जब मैंने वो 5 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, स्कोप ऑफ, आई मीन when we mark a particular option, a title or the title of the passage, we have to look at the scope. ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा नैरो होना चाहिए. इफ़ यू लुक एट ऑप्शन डी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया. ऑप्शन डी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. ऑप्शन ए की बात करें, हाउ रेसिज्म अफेक्ट्स अमेरिकन इकोनॉमी, दैट्स अगेन आउट ऑफ स्कोप, बिकॉज पूरे आर्ग्यूमेंट में कहीं पर भी अमेरिकन इकोनॉमी की बात नहीं हुई है, स्टैब्लिशमेंट की बात हुई है. स्टैब्लिशमेंट एज इन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है अमेरिकन गवर्नमेंट का, उस स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है. सो इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिकन इकोनॉमी. आउट ऑफ स्कोप, रिजेक्ट करो. नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. Evolution of racism in America. This might sound logical to some people, but then evolution की अगर बात करें, over the period of time racism कैसे change हुआ, how it began
कैसे फिर चला, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके कौन कौन से रूप आए हमारे सामने, कैसे इवॉल्व हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा. बस ये दे रखा है कि स्टैब्लिशमेंट का पार्ट है रेसिज्म. हेंस एवोल्यूशन ऑफ रेसिज्म is incorrect. The correct answer is racism and establishment, the story. So देखा आपने कितनी आसानी से हमने टाइटल ढूंढा. So we just have to look at a couple of points while we read and we'll be able to identify our option correctly. So आज की हमारी क्लास के लिए इतना ही. For more such interesting videos, do subscribe to our channel, hit the like button, and I'll see you in the next class. Thank you for your time. You all have a wonderful day.